Hello students, today we are going to see lesson number 1.7 of English and the title is Paramveer Chakra, our heroes. So in this chapter we are going to study about the Indian soldiers, about their brave deeds and the decoration which is given to them, which is bestowed to them. The decoration means award. तो ये जो हमारे सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, तो उनको अवार्ड दिया जाता है उनकी ब्रेव डीड्स के लिए. So all these things we have to study in detail. Let us see. You may have heard about legendary heroes. Legendary means famous, popular. Heroes of the past and their extraordinary acts of bravery. तो पास्ट में जो हैं, जो ये legendary heroes होकर गए हैं, famous heroes means this our Indian soldiers. So you may have heard about their bravery in the past. But even today, many brave soldiers of our country sacrifice their own lives for our safety. But now also, till now, these brave soldiers, what they do, they sacrifice their life. They sacrifice their lives in order to save us, in order to save the country. Their brave deeds are honored by bestowing military decorations on them. So, these brave deeds of these soldiers, ये जो उनकी brave deeds है, हाँ, जो कुछ भी ब्रेवरी वो दिखाते हैं, तो उसका ऑनर करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, ऑनर मीन्स सम्मान. इन ऑर्डर टू ऑनर देयर ब्रेव डीड्स, दे आर बेस्टोड विथ मिलिट्री डेकोरेशंस. मिलिट्री डेकोरेशंस, मिलिट्री में जो अवार्ड्स रहते हैं, वो अवार्ड्स उनको दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू ऑनर देयर ब्रेवरी. उनके ब्रेवरी का सम्मान करने के लिए, उनकी जो बहादुरी है उसका सम्मान करने के लिए उन्हें ये अवार्ड्स जो है ये दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं. परमवीर चक्र इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन. So there are different types of military decorations, but among them Paramveer Chakra is the highest Indian military decoration. It is awarded for the most conspicuous bravery or some daring or preeminent act of valor or self-sacrifice in the presence of the enemy, whether on land, at sea or in the air. So ये जो अब ये पुरस्कार जो है is award as it is India's highest military decoration. So it is given for most preeminent act of bravery. तो ऐसे वैसे किसी को भी दिया नहीं जाएगा ये, तो ये किसको दिया जाता है? ऐसे लोगों को, ऐसे सोल्जर्स को. फिर चाहे वो सोल्जर्स लैंड करके हो, मीन्स आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो या चाहे फिर वो एयरफोर्स हो. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बारे में तो आपको पता ही है. तो इन तीनों में से वो कोई भी हो सकता है, बट द एक्ट ऑफ ब्रेवरी शुड बी प्री इमिनेंट. बहुत ही जो वो एक्ट उनका रहता है, जो वो ब्रेवरी रहती है, वो बहुत ही कैसी होगी, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी रहेगी. तभी ये जो पुरस्कार है, ये डेकोरेशन जो है, उन्हें दिया जाता है. द परमवीर चक्र इज अ वेरी रेयर ऑनर एंड सी this Paramveer Chakra is not common decoration or award, but it is very rare. बहुत ही मतलब कम ये पुरस्कार दिया गया है. क्यों कम दिया गया है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी के लिए ही दिया जाता है. So far it has been awarded only 21 times. See how many times it is awarded? Just 21 times. तो आपको पता चला ये रेयर क्यों बोला गया है. अब तक जो है तो सिर्फ 21 टाइम्स वो दिया गया है. 14 of these awards were given posthumously and out of this 21, 14 जो है, 14 awards out of this 21, 14 awards were given posthumously. Posthumously means after the death of that soldier. उसके मृत्यु के बाद जो सोल्जर है वो सपोज लड़ रहा है, वहाँ पर बॉर्डर पर लड़ रहा है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी दिखाई और इसी तरह से वो लड़ते लड़ते अपने देश के लिए जब उसने अपने जान का बलिदान दे दिया, तो ऐसे लोगों को, ऐसे सोल्जर्स को आफ्टर डेथ मीन्स पोस्टुमसली ये अवार्ड दिया गया है. हाउ मेनी आर दोज? 14 आउट ऑफ 21. तो बचे कितने अभी? 6 and 1, 7 बचे अभी. मतलब 7 ही ऐसे लोग हैं, सोल्जर्स है, जिनको अपनी लाइफ में वो अवार्ड मिला. नॉट आफ्टर डेथ बट
in their life they got 7 are there. 7 plus 14, 21. So see you next. So now in this box, description is given about this medal. Let us see how it is, how it looks. See, the medal itself is very simple in appearance. ये जो मेडल है आपको लगेगा कि अब ये जो परमवीर चक्र का मेडल है वो बहुत ही कुछ अलग होगा, बहुत ही कॉस्टली होगा, हेवी होगा, नॉट लाइक दैट. इट इज वेरी वेरी सिंपल इन अपीयरेंस. उसका अपीयरेंस अगर हम देखें तो वो बहुत ही सिंपल है. यू कैन सी हियर पिक्चर इज गिवन. ओके, सी द मेडल इटसेल्फ इज वेरी सिंपल इन अपीयरेंस. इट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज इज अ काइंड ऑफ मेटल. स्टील, आयरन जैसे होते हैं तो उनके जैसा ब्रॉन्ज भी एक मेटल है. सो दिस मेटल इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड इज फिटेड विथ स्वीवेल माउंटिंग एंड हैज अ प्लेन पर्पल रिबन. स्वीवेल माउंटिंग होती है उसके ऊपर. स्वीवेल मीन्स लाइक दिस माउंटिंग एंड हैज अ प्लेन पर्पल रिबन. और एक प्लेन पर्पल कलर की रिबन में उसको क्या किया गया है, डाला गया है. ऑन द ऑब्जर्व मीन्स एट द फ्रंट. ऑन द ऑब्जर्व मीन्स एट द फ्रंट. इट हैज द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम एट द सेंटर. इंडियन नेशनल एम्ब्लेम क्या है पता है ना आपको? 3 lions. 3 lions का वो जो पिक्चर होता है इंडियन नेशनल एम्ब्लेम. So you can see at the front, at the on the observe, it has Indian national emblem. At the center, surrounded by 4 replicas of Indra's Vajra. इंद्र वज्र सुना है आपने? सुना है ना? तो इंद्र वज्रा जो है तो इसका रेप्लिका मीन्स छोटा बनाया गया जाता है. तो this Indian national emblem is at the center and it is surrounded with the 4 replicas of Indra's Vajra. वज्र एक हथियार है, वेपन, इंद्र का वेपन. On the reverse means opposite side. The words Paramveer Chakra are engraved in Hindi, English with 2 lotus flowers in between. और लिखा जाता है उसके रिवर्स जो है तो पॉइंट के रिवर्स के साइड में आपको दिखेगा परमवीर चक्र लिखा हुआ. एनग्रेव्ड मतलब एनग्रेव्ड पता है ना, इसको कोर काम बोलते हैं मराठी में. तो एनग्रेव्ड विथ परमवीर चक्र in Hindi and English language with 2 lotus flowers in between. और उसके between क्या होते हैं? 2 lotus flowers. The Paramveer Chakra medal was designed by सावित्रीबाई खानोलकर. और ये इसकी जो डिजाइन है, this design is done. It was designed by सावित्रीबाई खानोलकर. Now who was this lady? She was a European lady. कौन है? यूरोपियन लेडी who married Vikram Khanolkar, an Indian army officer. So this lady is not Indian lady but she is European lady, but she married Indian army officer. Okay, and the name of that officer is Vikram Khanolkar. So as this European lady, she married Vikram Khanolkar. So she an Indian army officer. This Vikram Khanolkar is Indian army officer and this Savitribai Khanolkar, she is European lady but she married to this person. Savitribai loved India and took Indian citizenship. After marrying this person, this army officer, she took Indian citizenship. India की citizenship उसने ले ली. She spoke Marathi, Sanskrit, Hindi fluently and had studied Indian arts and traditions in depth. Not only she took the citizenship of India, but she also learned to speak Hindi, Marathi, Sanskrit and these all 3 languages very very fluently. यूरोपियन लेडी है, समझ लो यूरोपियन लेडी है लेकिन वो इंडिया में आई, इंडिया की सिटीजनशिप ली एंड नॉट ओनली दिस बट शी learned the 3 languages, 3 main languages of India, Marathi, Hindi and Sanskrit very nicely, and now she was able to speak all these 3 languages very fluently.
एंड ऑल्सो स्टडीड इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशन. इंडिया का जो आर्ट एंड ट्रेडिशन है तो बहुत ही पॉपुलर है इन द वर्ल्ड. सो ये आर्ट्स एंड ट्रेडिशन जो है इंडियन, ऑल दिस थिंग्स शी स्टडीड इन डेप्थ. बहुत ही डेप्थ में जाकर इन सब चीज़ों का उसने क्या किया, सावित्रीबाई खानोलकर ने स्टडी किया. सो हैव यू अंडरस्टूड हाउ इज दिस परमवीर चक्र एंड हु डिजाइंड दिस. तो ये जो परमवीर चक्र है इट इज वेरी सिंपल इन अपीयरेंस एंड इट वाज डिजाइन्ड बाय सावित्रीबाई खानोलकर, ए वाइफ ऑफ द इंडियन आर्मी ऑफिसर विक्रम खानोलकर. Now see here one short story is given. इंद्रवज्रा जो मैंने आपको बताया ना on the replica, it is engraved on the replica. So ये इंद्रवज्रा क्या है? Let us see. Short story is given here. Indra's Vajra or thunderbolt is supposed to be a matchless weapon. It is considered that no other weapon is as great as Indra's Vajra. इंद्र वज्रा जो है तो इसके जैसा कोई भी वेपन नहीं है दुनिया में. इट इज सपोज्ड, इट इज थॉट दैट देयर इज नो वेपन विच कैन मैच दिस इंद्राज वज्रा. बट व्हाट मेक्स द वेपन इनविंसिबल इज द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ द सेज दधीची. लेकिन ये वेपन जो है ऐसा क्या है, व्हाट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन दिस वेपन that makes this weapon very different from other weapons, extraordinary weapon from other weapon. So it is the supreme sacrifice of sage Dadiji. Sage Dadi साधु, sage means साधु. तो साधु संत जो है, तो ये जो साधु है दधीची नाम का, तो इसने अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस दे दिया. This sage Dadichi, he sacrificed his life. And this supreme sacrifice of Sage Dadichi makes this Indra's Vajra, this weapon, invincible. According to legend, thousands of years ago, तो दंत कथा बोलो या legendary बोलो, हाँ, तो popular एक story है इसके हिसाब से. Let us see what is the story. According to legend, thousands of years ago, a demon had stolen all the water in the world. तो माना जाता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ कि एक जो डेमन था, राक्षस, उसने अर्थ पर, इस वर्ल्ड में जितना भी पानी है वो उतना पूरा पानी उसने क्या कर लिया, चुरा लिया. Innocent people were suffering and dying without water. So when he did this, when he stole all the water, in the world, at that time what happened, innocent people they started suffering. पानी ही नहीं है तो सफर तो करेंगे ही लोग. This demon could not be defeated by any ordinary weapon made of ordinary material like wood, metal, etc. तो ये जो डेमन है तो इसकी मृत्यु जो है, इसकी डेथ जो है तो किसी भी साधारण वेपन से पॉसिबल नहीं थी. ऐसा साधारण वेपन की जो किसी मेटल से बना है या वुड से बना है, तो उन चीज़ों से बना हुआ साधारण कोई भी वेपन इस डेमन को, इस राक्षस को मार नहीं सकता था. Something extraordinary was required. So in order to kill this demon, इस राक्षस को मारने के लिए कुछ तो एक extraordinary weapon की जरूरत थी. It was learned that the sage Dadichi had bones of such extraordinary power. एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो सेज दधीची थे तो उनके जो बोन्स थे तो वो बोन्स कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोन्स थे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन बोन्स में पावर था. बट हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन्स ऑफ अ लिविंग मैन. लेकिन एक जो जिंदा पर्सन है, जिंदा पर्सन है, उसके जो बोन्स है, सपोज उसके बोन्स है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के, लेकिन उन बोन्स को कौन मांग सकता है? जो पर्सन अब तक जिंदा है उसके बोन्स कोई मांगेगा क्या? नो. Sage Dadichi was a noble person, and this Sage Dadichi was really a noble, means very good person. He himself laid down his life and gave his own bones to help the people. जब उनको पता चला कि मेरे बोन्स में ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है
कि इसके पावर से उस डेमन को मारा जा सकता है, तो उन्होंने खुद ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी इन ऑर्डर टू किल दैट डेमन एंड सेव द पीपल। इंद्रवज्रा, इंद्रा's weapon of thunderbolts, was fashioned from these bones and the demon was defeated। और उनके जो बोन्स है, सेज दधी जी के जो बोन है, तो उन बोन से इंद्रवज्र नाम का वेपन बनाया गया। देखो अब पता चलेगा कि ये वेपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है। तो उनके बोन से दे प्रिपेयर्ड ए weapon and it was called as Indra's Vajra, and with this weapon the demon was killed। Just as the Indra Vajra derived power from sage Dadichi's bones, the Indian military derives its strength and power from the sacrifice of the bravest of the brave, the Paramveer Chakra holders। तो जिस तरह से सेज दधीची जो है, तो उनके बोन्स की वजह से इस इंद्र वज्रा को क्या मिला है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिला है। सो दिस इंद्रा's वज्रा, दिस वेपन गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर from sage Dadichi's bone। So in the same manner our military force, it gets the power, it gets this power from the sacrifice of the bravest of the brave, the परमवीर चक्र होल्डर। जो परमवीर चक्र होल्डर्स है, जिनको परमवीर चक्र दिया गया है, ये डेकोरेशन है, अवार्ड दिया गया है, तो उनकी ओर से इन लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है। बाकी के इंडियन सोल्जर्स को क्या मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, पावर मिलता है फ्रॉम द सैक्रिफाइस ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेव सोल्जर्स। समझ में आया? ठीक। अब नेक्स्ट पेज देखना है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखो से, ये जो निर्मलजीत सेखो है, ये भी क्या है, मिलिट्री ऑफिसर है। लेट अस सी नाउ, दिस इज रियल स्टोरी। सी, ऑन द 14th of December 1971, see the date, 14th of December 1971, Srinagar airfield was attacked by wave of 6 enemy Sabel aircrafts। तो 16 एनिमी जो थे सेबर एयरक्राफ्ट की, तो उन्होंने अटैक कर दिया ऑन द श्रीनगर एयरफील्ड। श्रीनगर पता है ना, कश्मीर। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखो वॉज ऑन द रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। और वहां पर ड्यूटी किसकी थी, जब यहाँ पर 6 एनिमीज ने अटैक किया एट दैट टाइम, वहां पर ड्यूटी किसकी थी, निर्मलजीत सिंह सेखो। He could not take off immediately because of clouds of dust raised by another aircraft। वो प्लेन में थे, फाइटर प्लेन, लेकिन वो जल्दी से प्लेन उड़ा नहीं पाए। क्यों नहीं उड़ा पाए? बिकॉज ऑफ दिस 6 ये जो एनिमी के एयरक्राफ्ट्स थे, तो इनकी वजह से क्या हुआ, पूरी मतलब धूल, डस्ट उड़ रही थी, और डस्ट की वजह से निर्मलजीत सेखो अपना जो फाइटर प्लेन है वो जल्दी से उड़ा नहीं पाए। By the time the runway was clear, और जब तक रनवे क्लियर हो जाता, the enemy aircraft were overhead। जब तक पूरी धूल हट नहीं जाती, तब तक क्या हो गया, ये जो एनिमी के एयरक्राफ्ट थे, तो वो एकदम सर के ऊपर आ गए, सर के ऊपर आकर वो मंडराने लगे। They were flying low, firing and attacking the airfield with bombs। बहुत ही नीचे आकर वो क्या कर रहे थे, वो एनिमी एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे, फायरिंग चल रही थी उनमें से, एंड अटैक कर रहे थे द एयरफील्ड विद बॉम्ब्स। बड़े बड़े बॉम्ब्स वो यहाँ पर डाल रहे थे। इवन दैट फ्लाइंग ऑफिसर सेखो टुक ऑफ इन हिज नॉट फाइटर द मूवमेंट ही कुड। लेकिन फिर भी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, निर्मलजीत सेखो व्हाट ही डिड, ही टुक ऑफ इन हिज नॉट फाइटर। उन्होंने टेक ऑफ कर दिया। He began to combat the powerful Sabel jet aircraft of the enemy, और उन्होंने फाइट स्टार्ट कर दी। He damaged 2 of them, और 6 में से 2 को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। 6 एनिमी एयरक्राफ्ट में से 2 were damaged। His fight with the attacking aircraft now continued at tree top height, और बहुत ही जोरों से घमासान ऐसा युद्ध में शुरू हो गया। At last the enemy aircraft fled from the scene of battle, और
निर्मलजीत सेखो इतने अच्छी तरह से उन लोगों से लड़े कि इन लोगों को वहां से भागना पड़ा, वो दुम दबाकर वहां से भाग गए। द एयरफील्ड एंड द टाउन ऑफ श्रीनगर वेयर सेव्ड। एयरफील्ड और टाउन जो था श्रीनगर का वो तो उन्होंने सेव कर लिया, बट अलास फ्लाइंग ऑफिसर सेखो's एयरक्राफ्ट टू crashed and he was killed. But while fighting with this enemy's aircraft, this Nirmaljit Singh Sekho's aircraft also was crashed. क्रैश हो गया और इसी क्रैश में ये जो निर्मलजीत सिंह सेखो थे तो वो उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। Flying officer Sekho displayed great flying skill and determination in the face of certain death. He showed unmatched heroism above and beyond the call of duty. Salute to the bravest of the brave, Flying Officer निर्मलजीत सिंह सेखो। तो इस तरह से जो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखो थे तो उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ही शोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी bravery at the airfield, and in this way he sacrificed his life, means he did the duty, he did his duty beyond the call of duty। जो उनकी ड्यूटी थी तो ड्यूटी से बढ़कर भी उन्होंने काम कर दिया, उन्होंने अपनी जान की तक परवाह नहीं की, एंड ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ इन ऑर्डर टू सेव आवर कंट्री। सो इस तरह से वी ऑब्वियसली वी हैव टू सैल्यूट हिम फॉर हिज ब्रेवरी, उनको सैल्यूट करना तो बनता ही है। सेम डू रीड मोर ऑन द इंटरनेट at www.paramveerchakra.com। तो अगर हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए, so net is there ना, so we can go on this website, already website they have given, so we can go on this website and we can study all other stories related to Paramveer Chakra. About the gallant means brave PVC awardees who laid down their lives in the service of the country. So suppose if you go on this website, you can get information about the PVC awardees who laid down their lives in service of our India. You will see that they belong to various communities and religions. And one best thing कि ये जो सब soldiers हैं, ये जो PVC awardees हैं, they belong to different religions and different communities. Do find and read the inspiring accounts of how they face the enemy without any regards for their fatal wounds and physical pain. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, we can read their stories and we can get inspiration from it, that in what way they face the enemy without caring about their fatal wounds, जो उनके जानलेवा जख्म थे या फिर उनका शारीरिक दर्द था, तो उसकी परवाह किए बिना they fought on the border in order to save our country. They laid down their valuable lives for saving us and our country. Now see here students, see a list is given, the 21 bravest of the brave Paramveer. So this is the list of all those brave soldiers who were bestowed with परमवीर चक्र, जिनको परमवीर चक्र अवार्ड्स दिए गए, डेकोरेशंस दिए गए, तो उनकी ये लिस्ट है। Once I will read it, pay attention. Major सोमनाथ शर्मा, लांस नाइक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा रानी, नाइक जादू नाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबच्चन सिंह